Hello everyone. Good afternoon to all guys. How are you all? So this is the second lecture of binomial theorem. Okay, and most probably in next 2 to 3 classes we will be completing this chapter binomial theorem, and this is your last chapter, right? So in the today last class, what we have discussed, we have discussed what is factorial, what is binomial, what is the binomial expansion. All these things we have discussed in the last class, and also how we can find the binomial coefficients, how we can find the what uh, yes, coefficients of any expansions by using the Pascal triangle, all these things, and also we have studied about how to find the general term, right? How to find the general term. So can you tell me what is the expansion of x plus y to the power n? Anyone can tell me what is the expansion of x plus y to the power n? है ना? ये कहाँ से शुरू होता था? n से 0 x to the power x की पावर जो है that is starting from the power of expansion, that is n into y to the power 0. फिर अभी क्या हो जाएगा ना, प्लस एन सी 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. एक्स की पावर हम घटाते जाएंगे एंड y की जो पावर है उसको बढ़ाते जाएंगे, है ना. फिर एन सी 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन. ऐसे ही चलता है ना. एंड बीच में हम लोग क्या लिखे, है ना, बीच में एक ऐसा लिखे थे ना, सपोज फॉर आरएच टर्म एन सी आर into x to the power n minus r into y to the power r and so on. ऐसे कहां तक जा रहा था ये ना, x to the n c n minus 1 x to the power 1 into y to the power n minus 1 plus the last term is n c n x to the power 0 into y to the power what n, right? So this is the actually binomial expansion of x plus y to the power n. Is it or not? Is it or not? Yes. Okay. Now tell me what is the general term. In the last class we have discussed what is the general term. What is the formula for general term to find the general term? Anyone can tell me? That is t r plus 1. Na? What is that? Anyone can tell me? Zain B, Imam. Yes. What is the general term? That is NCR into x to the power n minus r into y to the power r. So how we can represent already, and also we have seen one more thing, how we can represent this expansion by using the sigma, है ना. समेशन को हम यूज करके हम एक्सपांशन को कैसे डिनोट कर सकते हैं, दैट इज x plus y to the power n can be written as summation from r is equal to 0 to n NCR x to the power n minus r into y to the power r, है ना. बस जनरल टर्म में हम अगर सिग्मा लगा देंगे फ्रॉम 0 r is equal to 0 to n, so that will represent to this expansion x plus y to the power n. Is it or not? ये सारी चीज हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ, है ना, लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चंस. हम जनरल टर्म की क्वेश्चन से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, है ना. So tell me, the question is like this: the coefficient of, you need to find the coefficient of x to the power minus 6 in the expansion of, yeah, in the expansion of 4x divided by 5 plus 5 upon 2x square whole to the power 9. It's, so you need to find what? You need to find the coefficient of x to the power minus 6 in the expansion. This. कैसे फाइंड आउट करेंगे? एनी आइडिया अबाउट हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2023 JEE Main. Anyone can tell me what is the idea to solve this question? How we can find the coefficient of x to the power minus 6 in this expansion? Yes. Any idea? Okay.
So let's discuss what is the solution of this question. Let's first try to find the general term first. है ना? So first try to find the general term. Okay. So what is n here? 9. This is my 9. This is my n. So 9CR. 9CR into x to the power, in place of x what we are having, 4x upon 5 whole to the power 9 minus r, है ना, into y to the power, in place of y we are what we are having, 5 upon 2x square whole to the power r. Is it or not? समझ में आ रहा है सबको, है ना? So this is my general term. We need to find the coefficient of x to the power minus 6, right? So the best way to solve this question is first जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये जो जनरल एक्सप्रेशन में जो जनरल टर्म में जो कांस्टेंट टर्म है उसको साइड करा दो, है ना? तो पहले तो हम उसको 9CR, इट्स अ कांस्टेंट टर्म, है ना, एंड देन वी आर कमिंग थ्रू 4x upon 5 to the power 9 minus r. So here we can differentiate also 4 upon 5 to the power 9 minus r. From here also I can write 5 by 2 whole to the power r. So these are my constant term present in the general. So what are the variables now you are having? That is, one is x to the power 9 minus r, and here what you are having, x square, x to the power minus 2, or I can write this as 1 upon x square whole to the power r. These things you are having. ठीक है? So हम इसको अभी क्या कर सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. Sorry, actually I see it in a odd place. That's why some placing some issues. Okay, so let's see. I can write, see here, 9CR 4 upon 5 9 minus r into 5 by 2 whole to the power r. So here I can write, if you club these two expressions, what you will get, x to the power 9 minus r और नीचे क्या है, x to the power 2r. So if you club the indices of x, तो क्या मिलेगा, 9 minus 3r ही मिलेगा. ये सब 9 minus 3r will get. ठीक है? So what you are going to find, we need to find the coefficient of x to the power minus 6, है ना? So अगर मैं x की पावर में ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास हो गया, है ना, ये एक्सप्रेशन में x की पावर में मैं अगर -6 ले आऊं, then this will become what, the coefficient of x to the power -6, है ना? तो x to the power 9 minus 3r को मैं x to the power -6 कैसे ला सकता हूँ? मैं 9 minus 3r को मैं क्या कर रहा हूँ, देखो व्हाट आई एम डूइंग, 9 minus 3r को इक्वेट करो -6 के साथ, और यहां से आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करके r की वैल्यू मिल जाएगा, है ना? तो r की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, सो दिस विल बी 15 इज इक्वल टू 3r एंड r वी आर गेटिंग दैट इज 5. ओके, सो r मुझे कितना मिल रहा है, दैट इज 5. अच्छा, अगर r की वैल्यू 5 मिल रहा है और फॉर द वैल्यू ऑफ r इज 5, है ना, मतलब r की वैल्यू 5 के लिए this x to the power 9 minus 3r becomes x to the power -6. Listen, for r is equal to 5, this ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास x to the power 9 minus 3r, this becomes now x to the power -6. That means अगर r की वैल्यू हम यहाँ पे 5 पुट कर देंगे तो x to the power -6 का कोएफिशिएंट मुझे मिल जाएगा आराम से, है ना? सो नाउ फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power -6. कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, ये जो कोएफिशिएंट है ना, ये जो कोएफिशिएंट है इसमें बस क्या पुट करेंगे, अब r इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, तो इट बिकम्स 9c5, ओके, 4 upon 5 टू द पावर 9 माइनस r, दैट इज 4, ये 4 आ जाएगा, फिर 5 upon 2 होल टू द पावर r, दैट इज 5. ये सब इसको बस सिंपलीफाई करो, ये तुम्हारा आंसर है, ये आपका आंसर है, नथिंग एल्स. इसको सिंपलीफाई करेंगे, जो भी मिलेगा दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स. कर सकते हो कि नहीं ये बताओ मुझे, सिंपलीफाई कर दो ना. 9c5 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 9 into 8 into 7 into 6 डिवाइडेड बाय 5 into 4 into 3 into 1 2, है ना, ये लिख सकते हैं, है ना? अच्छा, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, 9c5 is equal to 9c4 also,
ये सब 9c5 इज इक्वल टू 9c4, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ना। डायरेक्टली वी कैन राइट दिस एज 4 into 3 into 2, राइट, है ना? समझ में आ रहा है सबको? यस, डन, ओके। सो 4 to the power 4, यहां से अभी क्या है, 4 to the power 4, 5 to the power 4 इंटू 5 to the power 5, सॉरी 5 to the power 5 अपॉन 2 to the power 5। इसको सिंप्लीफाई करो, अभी सिंप्लीफाई कर दो, जो भी मिलेगा आंसर दैट विल बी 5040। दिस इज योर आंसर, 5040 करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? कोई डाउट है इसमें? एक एक्सपांशन दिया था, वो एक्सपांशन में मुझे पता था कि x⁻⁻6 का कोएफिशिएंट निकाल के मुझे, राइट, है कि नहीं? सो हाउ वी कैन फाइंड? फर्स्ट ट्राई टू फाइंड द जनरल टर्म, एंड जनरल टर्म फाइंड आउट करने के बाद क्या करो ना, जो कांस्टेंट टर्म है वो साइड में ले जाओ, एंड जो वेरिएबल टर्म्स है उसको भी साइड में ले जाओ। फिर देखो यहाँ पे मुझे वेरिएबल टर्म्स मिल चुका है, ये सब है, एंड ऑल्सो आई एम हैविंग ए कांस्टेंट। अच्छा, मुझे चाहिए क्या? आई नीड टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁻6। सो हियर वी आर हैविंग x⁻9-3r, so we need to make this 9 - 3r as -6। ये सुनो, अगर मैं 9 - 3r को -6 में कैसे कन्वर्ट करूं? मैं 9 माइनस, तो r की वैल्यू चाहिए मुझे, 9 - 3r इज इक्वल टू -6 ले लो, फिर 15 इज इक्वल टू 3r हो गया, तो r की वैल्यू मिल गया मुझे। सो फॉर r इज इक्वल टू 5, आई एम गेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁻6 as what? 5040। Is it clear to everyone, guys? Let me know in the chat box if it is clear. If you have any doubt, you can ask. Yes, कोई डाउट है इसमें? चलो चलो, सो लेट्स मूव टू ए अनदर क्वेश्चन, है ना? और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है आपके पास, यू नीड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। फाइंड, देखो आज की क्लास में हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी करेंगे, इसको समझो। एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की ही, रिसेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, टोटल नंबर ऑफ, ओके, irrational terms in the expansion in the binomial expansion of what? 7 to the power 1 by 5 minus 3 to the power 1 by 10 whole to the power 60 is what? ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को, 55, that is 49, C option is 48, D option is 54, and it's a question from 2019 JEE. Try to solve it. How we can solve it? Different type of questions we are solving here, right? Chalo, let's try. Let's see what is the solutions you are getting. Yeah, do you have any idea how we can attempt this question? How we can solve this question? Yes. अच्छा, मेरे पास एक्सपांशन क्या है? We need to find the number of irrational term. तो एक्सपांशन क्या है? 7 to the power 1 by 5 minus 3 raised to 1 by 10 whole to the power 60. अच्छा, ये एक्सपांशन है मेरे पास, ठीक है? So all these questions we are solving by using the general term. Okay, so first try to find the general term. अच्छा, जनरल टर्म हम क्या हो जाएगा ये एक्सपांशन में, जनरल टर्म को हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, एम की वैल्यू क्या है? 60, 60 आर, और एक्स की वैल्यू क्या है ना, 7 to the power 1 by 5 होल टू द पावर कितना आ जाएगा? n माइनस आर, 60 माइनस आर आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या है ना, -3 to the power 1 by 10 होल टू द पावर आर आ जाएगा, है ना? सो दिस इज माय जनरल टर्म बेसिकली, ये समझो। अच्छा, ये जो -3 to the power 1 by 10 होल टू द पावर आर है ना, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ भाई, जो -1 to the power आर को बाहर ले आता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 60 सी आर इंटू -1 to the power आर को मैं
ये इस यहां से ले आया, तो नाउ इट बिकम्स 7 to the power 60 minus r upon 5. ओके, एंड 3 to the power r by 10, ये मिल रहा है मुझे। ठीक है, ये मेरा जनरल टर्म बन गया। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, राइट, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। अच्छा, इरेशनल टर्म का मतलब क्या होता है, देखो, इधर ये √2 कैसे होता है, 2 to the power 1/2 होता है कि नहीं? 2 to the power 1/2 मतलब पावर में क्या आ रहा है ना, फ्रैक्शन आना चाहिए। इरेशनल नंबर के केस में क्या आना चाहिए, पावर में फ्रैक्शन आना चाहिए। जैसे √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 to the power 1/2, तो 3 की पावर में क्या आ रहा है ना, फ्रैक्शन आ रहा है, तभी हमें इरेशनल नंबर मिलता है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 2, 2 to the power 1/3, ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स ही हैं। तो इरेशनल नंबर के केस में क्या हो रहा है ना, इंडाइसेस जो पावर में फ्रैक्शन नंबर आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है। अच्छा, दैट मीन्स जब फ्रैक्शन आएगा, है ना, ठीक है, जब फ्रैक्शन आएगा तभी तो, अगर यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन बनेगा, मतलब 60 minus r/5, अगर ये फ्रैक्शन बन जाएगा, दोनों को फ्रैक्शन होना चाहिए, फिर ये भी फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। अगर नहीं, एक भी कोई, मतलब कोई भी एक फ्रैक्शन हो जाएगा पावर में, 7 की पावर फ्रैक्शन हो जाए या 3 की पावर फ्रैक्शन हो जाए, तभी तो मुझे इरेशनल नंबर मिलेगा। But total number of terms, what, how many numbers of number of terms you are having in the given expansion? Total number of terms in the given expansion is equal to 61, है ना। तो मैं तो ये बोल सकता हूँ कि भाई ये जो है ना, इसमें इरेशनल नंबर अगर मैं ट्राई करूं फाइंड आउट करने के लिए, इट विल बी डिफिकल्ट। सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी हैव टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, so try to find the number of rational number of terms of rational number of rational terms first week। सच रेशनल कब बनेगा ये भाई, रेशनल कब बनेगा, है ना, जब रेशनल कब बनेगा, जब 60 minus r/5 एक इंटीजर हो जाएगा, या r/10 एक इंटीजर हो जाएगा, है ना। मतलब ये टोटली में दोनों के इंटीजर होना पड़ेगा, 7 to the power 60 minus r/5 and 3 to the power r/10 to be what rational number, this power must be integer, both the power must be integer at a time। अगर कोई भी एक इरेशनल हो जाएगा तो फिर इरेशनल टर्म मिल जाएगा, तो दोनों को इंटीजर होना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे फिर, इंटीजर अगर रेशनल टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, रेशनल टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं प्लीज। कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, पावर मस्ट बी इंटीजर। अच्छा, ये पावर जो है 60 माइनस r/5 एंड r/10, ये पावर जो है आर की, फॉर which वैल्यू ऑफ आर these powers will be what, यस, रेशनल और इंटीजर सॉरी, इंटीजर होना चाहिए, है ना। सो फॉर which वैल्यू ऑफ आर this the power of 7 and power of 3 will be what, इंटीजर। एक तो देखो r इज इक्वल टू 0, अगर आप लेके देख सकते हो, 60 माइनस 0/5, so it becomes 12, yeah, it becomes an integer, या 0/10, 0 इज एन आल्सो इंटीजर, है ना। फिर उसके बाद देखोगे ना, कभी भी नहीं आएगा, फिर 10 में आएगा। अगर r को हम 10 पुट करेंगे तो 60 माइनस 10/5, तो 50/5, ये इंटीजर बन रहा है। फिर 10/10, ये भी इंटीजर बन रहा है। फिर 20 में चेक करो, फिर 30 में चेक करो, फिर 40 में चेक करो, फिर 50 में चेक करो, फिर 60 में चेक करो, है ना। तो ये मल्टीपल्स ऑफ 10 फॉर व्हेन r बिकम्स मल्टीपल ऑफ 10 विद इन द लिमिट विथ लेस देन 60, 60 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक्सपेंशन में जो पावर है दैट इज 60, है ना। तो 60 से r की वैल्यू छोटा होना चाहिए, एंड व्हेन r बिकम्स मल्टीपल ऑफ 10, है ना, सो दोस टाइम द पावर ऑफ 7 एंड पावर ऑफ 3 बिकम्स एन इंटीजर, ये इंटीजर बन रहे हैं। दैट मींस ये जब भी इंटीजर बनेंगे, तब तब ये क्या हो जाएंगे ना, रेशनल बनेंगे। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस इट विल, दोस नंबर विल बी इरेशनल। सो ये कितने टर्म्स है आर के कितने टर्म्स में चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टर्म्स मुझे मिल रहा है रेशनल टर्म्स, ठीक है, 7 टर्म्स आर रेशनल। Now you can easily find how many number of terms, irrational terms you are having.
So number of irrational terms कितना हो जाएगा? दैट इज 61 टोटल टर्म्स, टोटल माइनस 7, दैट इज 61 माइनस 7, तो कितना आ रहा है? 54 आ रहा है. So this is your answer. 54 is the correct answer. Is it clear to everyone? 54 is the correct answer. Anyone having any doubt? किसी को कुछ डाउट है क्वेश्चन में तो पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं. किसी को अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क. अच्छा क्वेश्चन था ना, 2019 जेई मेंस का क्वेश्चन था. ठीक है. एनीवन हैविंग एनी डाउट? बोलो. Okay, so let's move through the next concept, that is finding remainder. अच्छा, तो रिमाइंडर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर कोई भी एक और वाला कुछ नंबर दे दिया होगा तो उस केस में हम रिमाइंडर को कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं ये क्वेश्चन को, ये कॉन्सेप्ट को, है ना. क्वेश्चन ये दिया है, इफ 27 to the power 999, okay, is divided by 7, then the remainder is options are, first they have 1, option B is 2, option C is 3, option D is 6. Anyone can tell me how we can find, है ना. बेसिकली यूजुअली हम बाइनोमियल थ्योरम ही पढ़ रहे हैं, बाइनोमियल एक्सपांशन ही पढ़ रहे हैं. सो बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन वी कैन फाइंड द रिमाइंडर, राइट. ओके, चलो. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो क्वेश्चन के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये 2017 जेई मेंस का क्वेश्चन है. ट्राई करो कैसे सॉल्व करेंगे. वी कैन राइट, देखो 27 क्या दिया है मुझे? 27 टू द पावर 999. सो कैन आई राइट दिस एज 28? अच्छा, तो क्यों मैं 28 में कन्वर्ट करूं? क्योंकि इट इज डिवाइडेड बाय 7. अच्छा, मुझे कोई अगर 27 के आसपास कोई एक 7 का मल्टीपल मिल जाएगा ना, तभी मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के जैसे मैं बना सकता हूँ. जैसे कि 28 इज मल्टीपल ऑफ 7, सो आई कैन राइट 27 एज 28 माइनस 1 टू द पावर 999. इज इट नॉट? समझ में आ रहा है सबको? ओके, नाउ ट्राई टू एक्सपांड इट. अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? देखो देखो, अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा? दैट इज n इज 999, c 0, है ना. 28 टू द पावर 999 एंड माइनस 1 टू द पावर व्हाट आ जाएगा? 0, है ना. फिर अभी क्या आ जाएगा? प्लस, है ना. प्लस 999 c1 और 28 टू द पावर 998, फिर माइनस 1 टू द पावर 1 आ जाएगा. फिर प्लस 999 c2 28 टू द पावर 997 इंटू माइनस 1 टू द पावर 2. ऐसे ही चलता जाएगा. फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में जो टर्म आपको मिलेगा, जो लास्ट से पहला वाला टर्म है ना, वो क्या हो जाएगा? देखो ना, इट बिकम्स 999 c 998 और 28 टू द पावर 1, ओके, माइनस 1 टू द पावर 998. यहां तक तो समझ में आ गया होगा सबको, है ना. ये लेकिन लास्ट टर्म तो बचा हुआ है ना भाई. लास्ट टर्म क्या हो जाएगा ना? 999 c 999 28 टू द पावर 0 इंटू माइनस 1 टू द पावर 999. देखो अभी देखो, ये जो है ना, इसको देखो, यहां से यहां तक जो सम है इसको फील करो क्या है इस. देखो सारे टर्म के साथ 28 मल्टीपल हुआ है, सारे टर्म के साथ. इसके साथ भी 28 है, इसके साथ भी 28 है, इसके साथ भी 28 है, इसके साथ भी 28 है. एंड वी नो 28 इज द मल्टीपल ऑफ 7. तो अगर 28 मल्टीपल हुआ है एंड 28 इज द मल्टीपल ऑफ 7,
So can I say this total bracket, total sum is also a multiple of 7? Yes or no? Can I say yes? बिल्कुल I can say, है ना? Because if I'll take 7 as common from each of these terms, है ना? So it becomes a multiple of 7, ना? So I can write this as 7k. Because it's a multiple of 7, I can write this as 7k. And ये जो लास्ट टर्म ये क्या बन रहा है भाई? Because ये लास्ट टर्म में जो 28 तो है ही नहीं, क्योंकि 28 to the power 0 is 1. So 28 है ही नहीं. तो क्या है मेरे पास ना 99, और एक बार लिख देता हूँ 999 C999 -1 to the power 999, है ना? तो बेसिकली ये व्हाट इट बिकम्स ना 7k, और ये -1 बनता है. -1 to the power 999 कितना होता है? -1 ही होता है. So finally what we are getting 7k -1 होता है. You can say sir the remainder is -1. No, remainder is not -1. How? Why it is not -1? रिमाइंडर को हम नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे सोच सकते हो, एक कोई भी एक नंबर ले लो, सपोज आई एम टेकिंग 14 डिवाइडेड बाय 3, है ना? सो 3 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 12, है ना? सो 2 मिलेगा मुझे रिमाइंडर. अगर आप ऐसा बोलोगे कि 14 और मैं 3 के साथ डिवाइड करूं, तो मैं थोड़ा हाइपर होके अपने 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दिस बिकम्स 15. So now my remainder becomes -1, but -1 तो नहीं हो सकता है ना? तो इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए? To find the real remainder, to find the actual remainder, what should you do? I have to add the divisor. जिससे डिवाइड कर रहे हो, उसको ऐड कर दो, है ना? जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको ऐड कर दो, है ना? तो ये कितना हो जाएगा फिर? जिससे डिवाइड कर रहे हो ये ऐड कर दो, तो 2 मिल गया ना? ये देखो 2 हो गया. So similarly here also we will do the same thing. Just do one thing, r plus 7, है ना, -7 प्लस r, 7 को r करो, माइनस भी कर लो, फिर -1 लिखो. देखो ये 7 अगर कॉमन आ जाएगा, 7 into k minus 1 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 6. नाउ सी द रिमाइंडर बिकम्स 6. सो दिस इज द आंसर. आंसर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर बिकम्स when the given expansion is divided by 3, the remainder becomes 6. This is your answer. ठीक है? This is your correct answer. Option is D. Correct option is D. Guys, is it clear to all? Anyone having any doubt? अच्छा, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, डोंट वरी. इसका शॉर्टकट देखो, इतना सारा चीज जो ना, ये हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व किए, लेकिन एग्जाम में हम बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है भाई. सारे टर्म्स को लिखो, इसको ढूंढो, मतलब वो तो दिक्कत हो जाएगा. लेकिन to solve such type of question you can use the shortcut. कैसे? ये समझ में आ गया सबको क्या? Is it clear to all? इसमें कोई किसी को डाउट है क्या? कुछ? You have any doubt you can ask. हो गया? देखो शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट क्या है बेटा? ना वही सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. देखो क्या था? 27 to the power मेथड 27 to the power 999. ओके, शॉर्टकट ये कहता है कि भाई जो नंबर 27 दिया है ना, और किसके साथ डिवाइड करना है मुझे? ना 7 के साथ. तो 7 का वो 27 का एक आसपास वाला नंबर ढूंढो जो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, बिकॉज यू नीड टू अप्लाई द बाइनोमियल एक्सपेंशन. तो आई कैन राइट दिस एज 28 - 1 to the power 999. यस, आई कैन राइट और नॉट. ठीक है? अगर इस टाइप से कुछ मिल रहा है ना, तो जो मल्टीपल ऑफ 7 है जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो, इट इज डिवाइडेड बाय 7. यस सर, यस, इट इज डिवाइडेड बाय 7. अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो जिस नंबर, ये जो एक्सपेंशन है, ये गिवन, ये जो एक्सपेंशन है 28 इज मल्टीपल ऑफ 7. ठीक है? 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 7. सो व्हाट शुड यू डू? जस्ट डिलीट दिस नंबर, इसको कुर्बानी कर दो. 28 को भूल जाओ भाई, 28 आई है.
तो बस 2 सेकेंड में आपका आंसर आ गया, दैट इज -1 to the power 999 इज द आंसर, नॉट द आंसर। -1 तो रिमाइंडर नहीं हो सकता है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, जिससे डिवाइड कर रहे हो, जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो, व्हाट इज द डिवाइजर हियर, 7, तो 7 को ऐड कर दो, इसलिए जो भी मिलेगा दैट इज योर आंसर, राइट। 6 इज योर करेक्ट आंसर। यही तो किए थे हम यहाँ पे, नथिंग एल्स, है ना, यही तो किए थे। समझ में आया कि नहीं, बता, क्लियर बेटा, क्लियर एवरीवन, कोई डाउट है इसमें, है ना, शॉर्टकट समझ में आ गया। बस जो नंबर दिया होगा उसके आसपास वाला, जिससे डिवाइड कर दो उसका आसपास वाला मल्टीपल ढूंढो और उसको बाइनोमियल एक्सपांड जैसा लिखो। फिर जो मल्टीपल लिए होगे तुम उसको डिलीट कर दो, उसको भूल जाओ, वो था तुम्हारे पास, ठीक है। जो भी बच गया -1 to the power 99 उसको ले लो। तो क्या मिल रहा है, -1। अगर नेगेटिव मिल रहा है, अगर इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव रिमाइंडर, नेगेटिव नंबर एज योर रिमाइंडर, देन यू नीड टू ऐड द डिवाइजर और by which number you are dividing the given number. So here we are having 7, तो 7 को ऐड कर दिया, जो भी मिलेगा दैट इज योर आंसर, है ना। और एक क्वेश्चन करके देखते हैं, डोंट वरी, और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन आप करके मुझे, इफ p fractional, it denotes fractional part of p, ठीक है, denotes fractional part of p, okay, so p is a number basically, then fractional part of 3 to the power 200 upon 8 is equal to, है ना। ऑप्शन सर ये देखो 2020 जेई मेंस का क्वेश्चन है, बोलो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सबको पता होगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या, कोई भी नंबर में ड्यू पार्ट 2.005 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.005, है ना, वही होता है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है ना, ये अगर p डिनोट्स द, ये जो ये है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नंबर p है, देन दिस इज इक्वल, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, मुझे क्या फाइंड आउट करना है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 raised to 200 अपॉन 8 का फ्रैक्शनल पार्ट मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो इंपोर्टेंट। अच्छा देखो, जैसे कि लास्ट एग्जांपल हम लिए थे 14/3, कैन यू टेल मी हाउ वी कैन राइट this fraction in terms of mixed fraction? Yes, we can write this as 4 integer 2/3, 4 integer 4 2/3 लिख सकते हैं। yes sir, है ना। so this is actually the fractional part of this number, ठीक है, that's will we are going to do with nothing else, है ना। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 14 का, 14 अगर 3 से डिवाइड है तो, है ना, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये मिलेगा आपको 2/3, है ना। तो सिमिलरली देखो ये, देखो ये जो नंबर पूछा है मुझे 3 raised to 200 अपॉन 8 का फ्रैक्शनल पार्ट, देखो फ्रैक्शनल पार्ट देखो, ये डिनोमिनेटर ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 8 है, सारे ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 8 है। सो वी शुड नॉट वरीड अबाउट डिनोमिनेटर। तो मुझे किसके बारे में सोचना चाहिए, न्यूमरेटर के बारे में, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 8 ही होगा। जैसे यहाँ पे 3 हो रहा है, तो इस केस में इसका फ्रैक्शनल पार्ट की जो फ्रैक्शनल पार्ट आपको जो भी मिलेगा उसका डिनोमिनेटर 8 होना चाहिए, 8 तो होगा ही होगा, है ना। तो इसीलिए मैं क्या करूं भाई, मैं 8 के बारे में सोचूंगा ही नहीं, डिनोमिनेटर के बारे में सोचूंगा ही नहीं, मुझे किसके बारे में सोचना है ना, 3 to the power 200 के बारे में। ओके, सो 3 to the power 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 स्क्वायर होल टू द पावर 100, कर सकते हैं इसे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 3 स्क्वायर क्या है, 9 to the power 100, ठीक है, 9 to the power 100। सो 9 कैन बी रिटन एज, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे हम 8 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 के मल्टीपल, मतलब 9 के आसपास एक नंबर ढूंढो जो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। सो आई कैन राइट 8 + 1 to the power 100, yes or no? So here I am getting what is the remainder, because this number, ये जो नंबर है, इट इज डिवाइडेड बाय 8, है ना।
तो 8 का मल्टीपल तो 8 ही है ना, तो इसको भूल जाओ ना भाई, 8 को भूल जाओ तो। सो रिमाइंडर क्या मिलेगा ना, 1 to the power 100 है ना, तो ये हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है? सो 1/8 हो गया आंसर, है ना। सो आंसर क्या है ना, 1/8। इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 1/8। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल गाइस? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन। ये भी 2000 कब का ये क्वेश्चन था, 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। सही मेल 2020। ठीक है, डन। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है इसमें, पूछो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। हेलो ऑल। हेलो। हेलो। इसमें वॉइस ऑडिबल प्रॉपर्ली? एवरीथिंग इज गुड ना? ओके, सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। क्यों मैं आपको इतना क्वेश्चन इससे करा रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल में अगर आप देखोगे 2023 जेई मेंस का कोई भी शिफ्ट उठा लो, उसमें तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। रिसेंट ईयर की कोई भी क्वेश्चन का क्वेश्चन है आपके पास। लेट द नंबर 20 to the power 2022 plus 2022 to the power 22 leaves the remainder alpha. Alpha, then when divided by 3, when this number divided by 3. So, okay. So, what it is saying, let this number leaves the remainder alpha when it is divided by 3 and leaves the remainder as beta when it is divided by 7. Then you need to find alpha square plus beta square. ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो दिखने में अच्छा नहीं है लेकिन ये एक्चुअली इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको। ऑप्शन आर 20, 13, 5, ओके। लेट मी नो इन द आंसर क्या हो सकता है, कैसे करेंगे। वो दिया है एक नंबर, मुझे दिया है 22 टू द पावर 2022 प्लस 2022 टू द पावर 22 लीव्स द रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर अल्फा कब होता है ना, जब ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, और इसका जो रिमाइंडर बीटा होता है जब ये 7 से डिवाइड, राइट। सो यू नीड टू फाइंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। पहले तो मुझे क्या करना चाहिए एक्चुअली, बोलो। आइडिया है कुछ कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? देखो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे ही सॉल्व किए थे लास्ट क्वेश्चन को वैसे ही करना है, और कुछ नहीं है। दिखने में बड़ा सा लग रहा है लेकिन इसमें हो ही कुछ नहीं। देखो हाउ वी कैन सॉल्व, इसका सॉल्यूशन देखते हैं फिर। हम्म, अच्छा पहले तो अल्फा फाइंड आउट करने के लिए ट्राई। अल्फा को हम हमें कैसे मिलेगा, नंबर क्या दिया था 22 टू द पावर 2022 प्लस 2022 टू द पावर 22। देखो अच्छे से देखो, when this number is divided by 3 we are getting the remainder as alpha, right। अच्छा मुझे एक एक करके मैं देखूंगा ना। अच्छा 22 के आसपास कोई 3 का मल्टीपल है आपके पास? यस बिल्कुल है, 21। सो 22 कैन बी रिटन एज 21 प्लस 1 होल टू द पावर 2020 प्लस 2022 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2022 is it divisible by 3? 2 plus 2 4 plus, yes this number is divisible by 3। तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है क्योंकि इसका रिमाइंडर तो जीरो ही आ जाएगा, है ना। तो ये देखो अभी देखो 21 is a multiple of 3, so that's why I'm relating this 21 what you are having now 1 to the power 2020, it's the remainder 1। so what is the alpha? Alpha is equal 1। देखो अल्फा मिल गया मुझे, सिमिलर वे में आपको बीटा फाइंड आउट करना है, नथिंग एल्स, है ना।
बीटा को भी आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है, तो बीटा को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? लेट्स सॉल्व फॉर बीटा. अच्छा, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय व्हेन दिस नंबर इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय 7, वी आर गेटिंग द रिमाइंडर एज बीटा. अच्छा, तो 22 के आसपास कोई 7 का मल्टीपल है क्या? बिल्कुल है, दैट इज 21. वी कैन राइट 22 एज 21 प्लस 1 टू द पावर 2022 प्लस. अच्छा, 2022 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2022 के पास ना आसपास आपको एक तो नंबर ढूंढना पड़ेगा जो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट? वो 7 का मल्टीपल. अच्छा, आपको देखो, ये सोच के देखो, या तो ये 2021 हो सकता है, या तो 2023 हो सकता है, 2024 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा. लेकिन मैं आपको यहां से बता देता हूं कि 2023 इज डिविजिबल बाय 7, है ना? सो आई कैन राइट 2022 as 2023 माइनस 1 टू द पावर 22, है ना? तो देखो, अभी 7 का मल्टीपल जो है उसको कुर्बानी करो भाई, इसको मैं हटा दिया, तो यहां से मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा ना, 1 टू द पावर 2022 प्लस माइनस 1 टू द पावर 22. ओके, सो हियर आई एम गेटिंग 1 प्लस 1, दैट इज 2, है ना? सो बीटा की वैल्यू जो मिला ना मुझे, बीटा की वैल्यू मुझे क्या मिल गया? That is 2. So what we need to find actually? We need to find alpha square plus beta square. That is 1 square plus 2 square, which is equal to 5. So 5 is your correct answer for this question. देखो कितना easily solve हो गया ना. 5 is the correct answer for you. ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, राइट? ओके, डन एवरीवन. ओके, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे रहा हूं आपको. ये होमवर्क क्या? होमवर्क क्या है? द रिमाइंडर when 7 to the power 103 is divided by 17 each. ओके, 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है भाई, है ना? 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या दिया हमें? रिमाइंडर, यू नीड टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 17. यू नीड टू, देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सवाल अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है क्वेश्चन का. आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स ऑफ जो शॉर्टकट बताया हूं वो भी लग सकता है यहाँ पे, थोड़ा सोच सोच के आना है इसके बारे में. ठीक है, अच्छे से सोच के आना है. करंट चला गया. ठीक है, लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर मिडिल टर्म. सो हाउ वी कैन फाइंड द मिडिल टर्म? एनीवन कैन टेल मी, है ना? अगर देखो एग्जांपल के हिसाब से आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे. अगर आपके पास ऐसा कुछ है, ये n, और व्हेन n इज इवन, अगर n इवन है तो यू विल गेट वन मिडिल टर्म, है ना? यू विल गेट वन मिडिल टर्म, एंड मिडिल टर्म क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला? दैट इज n by 2 प्लस 1. देखो आपको समझाता हूं इसको अच्छे से. सपोज आई एम टेकिंग x प्लस वाई टू द पावर 6. यहाँ पे n क्या है? इवन है. हियर इसमें n क्या है ना? n इज इवन. अगर n इवन है तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, है ना? तो कितने टर्म्स मिलेंगे मुझे टोटल में? 7 टर्म्स, बिकॉज पावर इज 6. सो विल गेट 7 टर्म्स, t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7. देखो 7 टर्म मुझे मिल रहा है, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा ना, इस साइड से 3 को हटा दो, इस साइड से 3 को हटा दो. ये जो T4 हो रहा है ना, T4 इज योर मिडिल टर्म. ये क्या हो जाएगा? इट इज योर मिडिल टर्म. व्हेन n इज इवन यू विल गेट वन मिडिल टर्म. अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे मिला? आपको समझ में आ रहा है क्या? फॉर्मूला कैसे मिलेगा? दैट इज T4 को हम कैसे मेंशन लिख सकते हैं? दैट इज n इज इक्वल टू 6 ना. सो 6 अपॉन 2 प्लस 1, दैट इज 3 प्लस 1, है ना? सो ये जो मिडिल टर्म है, फोर्थ टर्म है. ठीक है, दिस इज द फोर्थ टर्म. इज इट और नॉट? सो बेसिकली ये हो गया फॉर्मूला. व्हेन n इज इवन you will use this formula to find the middle term, because when n is even you will get only one middle term. but when n is odd, अगर n odd हो जाएगा तो, जैसे कि हम ले सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल x plus y to the power 3, because here n is odd.
और n क्या है, और है, तो यहाँ पे मुझे कितने टर्म्स मिलेंगे ना, 4 टर्म्स, आई विल गेट 4 टर्म्स, तो T1 T2 T3 T4, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है, इसको एक यहां से हटाओ, यहां से ये हटाओ, ये दो टर्म्स बिकम्स नाउ, दिस टू टर्म्स बिकम्स नाउ योर मिडिल टर्म। एक तो है T2, दूसरा है क्या T3, अंडरस्टूड है ना। T2 T3, अच्छा T2 को हम कैसे लिख सकते हैं, T2 को हम वी कैन राइट दिस एज 4, क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, नहीं, सेकेंड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 अपन, क्या हो सकता है इसका फॉर्मूला, 4 + 1, n इज सॉरी n इज 3 ना, सॉरी 3 + 1/2, और T3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका अगले वाला टर्म ना, 3 + 1/+1 टर्म। तो मिडिल टर्म इस केस में क्या हो जाएगा ना, x + y⁴n, when n is odd we'll get two middle terms, ठीक है। क्या क्या है मिडिल टर्म्स आर, एक तो है क्या n + 1/2th टर्म एंड n + 1/2 + 1 टर्म, okay. So from next class we will be starting solving questions from middle terms, how we can find the middle terms, and we'll solve some previous year questions also, okay. So that's all for today's class. Thank you all, bye bye, take care everyone, thank you.